Bible records a spectacular, glorious, beautiful, supernatural event that took place in the days of Elijah. और बाइबल में एक बहुत ही अद्भुत खूबसूरत महिमा में किस्सा बताया गया है. Elijah, if you know, अगर आप एलिया को जानते हो, but Bible also says Elijah was just man like us, पर वचन ऐसा भी कहता है कि एलिया हमारे जैसा ही व्यक्ति था, who prayed, but he saw incredible things happen. और उसने प्रार्थना की और उसने बहुत ही अद्भुत चीजें होती हुई देखी. One glorious, beautiful, spectacular, extravagant event that I am referring to और एक बहुत ही महिमा में खास और अद्भुत किस्से जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, was a time when God told Elijah to go up on the mountain called Mount Carmel. और वो समय था जब एलिया को परमेश्वर ने कहा कि एक पर्वत पे जाए जो है कार्मल. Elijah was under a king who was known to be a worse king. और जो एलिया था वो उस राजा के नीचे था जो बहुत ही बुरा राजा माना जाता था, who did not follow God, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता था, who did not worship Yahweh, the living God. जो जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करता था, यहोवा की. And then Elijah said, "You are my man." God said to Elijah, "You are my man." और तब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे व्यक्ति हो. Elijah was standing alone. और वहां पे एलिया अकेला खड़ा हुआ था. In front of him was 850 prophets of Baal and Asherah. और उसके सामने 850 भविष्यवक्ता थे बाल और अशीरा के. It was a direct contest against living God. और ये एक मुकाबला था जीवित परमेश्वर के साथ. And those who were following Baal and Asherah. और उन लोगों के बीच में जो बाल और अशीरा को मानते थे. And this is what Elijah said to them. और ये है जो एलिया ने उनसे बोला. He said, "You raise an altar, कि तुम एक वेदी बनाते हो and I will raise one altar. और मैं एक वेदी बनाऊंगा. You take one sacrifice, और तुम एक बलिदान करना you prepare it, और तुम उसको तैयार करना you place it on your altar, और अपनी वेदी पर रखना, and I will prepare a sacrifice, और मैं एक बलिदान बनाऊंगा and I will place it on my altar." और मैं अपनी वेदी पर रखूंगा. So Elijah made an altar with stones. तो एलिया ने पत्थरों से एक वेदी बनाई He placed wood. और उसने वहां पर लकड़ी रखी. And this is what was the condition. और ये शर्त थी. He said, "No one will light fire to any altar. उन्होंने कहा हम दोनों में से कोई अपनी वेदी पर आग नहीं लगाएंगे. But the God who will come, who will answer, he will answer by fire." पर जो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, वो आग से जवाब देगा. The living God would answer by fire. कि जीवित परमेश्वर आग से जवाब देगा. And so they prepared the sacrifice. और फिर उन्होंने वो बलिदान तैयार किया. You can imagine so many stones are kept, Elijah choosing few and placing them. और आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे पत्थर थे वहां पे और एलिया ने उनमें से कुछ लिया और एक वेदी बनाई. He placing the wood और उस पे लकड़ी रखी. and he places the sacrifice. और फिर वहां पर बलिदान रखा. Now the prophets, they were 850. और जो भविष्यवक्ता थे वो 850 थे. But this man who is from Yahweh, the living God, और पर वो व्यक्ति जो यहोवा जीवित परमेश्वर की ओर से था, there is a direct contest. तो वहां पे सीधी एक मुकाबला हो रहा था. And so the prophets prayed and did everything. और फिर उन भविष्यवक्ताओं ने प्रार्थना करी और सब कुछ करा, But no fire. पर कोई आग नहीं आई. Till afternoon, no fire. पूरी दोपहर हो गई और कोई आग नहीं They आई. did everything. उन्होंने सब कुछ करा. You can go home and read this story. और आप जाके ये कहानी पढ़ सकते हैं घर पर. 1 Kings chapter 18. और वो है एक राजा उसका 18वां वचन. But it is at afternoon Elijah prays. पर फिर दोपहर में एलिया प्रार्थना करता You है. can imagine the times that they were living. आप सोच सकते हैं वो समय जहाँ पे वो रह रहे थे. Israel was meant to be God's covenanted people.
और जो इज़राइल थे वो परमेश्वर के वाचा दिए हुए लोग थे They were meant to be the worshippers of the living God, और the उन्हें माना true जाता था God. आराधक जीवित और सच्चे परमेश्वर का, But they had wandered away. पर वो भटक गए थे। I mean, look at the words of God to us this morning. और आज सुबह हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन हमारे लिए क्या है What इस सुबह। Teresa brought, saying there is a new season. और क्या ट्रेसा ने बोला कि एक नया सीजन शुरू होगा God is opening doors. और परमेश्वर दरवाजे If खोल रहा you है, choose that path, you will have life. और अगर आपने वो रास्ता चुन लिया तो आपके पास जीवन And she होगा। reminded the story of Joshua. और उसने फिर उन्होंने यहोशू की कहानी And याद right दिलाई। after that, Dia read that beautiful verse. और उसके ठीक बाद दिया ने वो खूबसूरत वचन पढ़े, Psalms 107, वो है भजन संहिता 107, which says, I was a wanderer. वो कहता है कि मैं भटका हुआ I था was hungry. और मैं भूखा था I was thirsty. और मैं प्यासा था, But someone showed us the way. पर किसी ने हमें मार्ग दिखाया। Aren't you blessed this morning? क्या आप आशीषित नहीं हैं सुबह? People of Israel were wanderers, और पर इज़राइल के लोग भटक गए थे, but God showed them the way. पर परमेश्वर ने उन्हें रास्ता They दिखाया had to choose the way. और उन्हें वो रास्ता चुनना था। We've been talking about God's ways. और हम परमेश्वर के मार्गों की बात कर रहे हैं And choice is there. और चुनाव उनका है। In the same way, Jesus says, narrow is the path. You want to choose the narrow ways? और ऐसे यीशु मसीह कहते हैं जो सकरा मार्ग है, क्या तुम वो चुनना It's चाहते going हो? to be tough. और हाँ, वो मुश्किल होगा, But surely it will lead to life. पर हाँ, वो जरूर आपको जीवन की ओर ले But the जाएगा। wide is the way, और क्योंकि वो बड़ा है वो रास्ता, which is going to be very easy way. जो आसान रास्ता होगा, But it will not lead to life. पर वो जीवन की ओर नहीं ले And so जाएगा। imagine once upon a time they were wanderer. God showed them the way, but in humans there is this tendency to keep on going back. एक समय था जहाँ वो भटके हुए थे और परमेश्वर ने उन्हें मार्ग दिखाया, पर हम मनुष्य होने के नाते बार बार दूसरे रास्ते पे चले जाते So हैं। what did Elijah prayed? तो एलिया ने क्या प्रार्थना की That altar कि वो वेदी got the fire. उस पे आग आई। Now before even Elijah prayed, let me tell you what he did. और इससे पहले एलिया ने प्रार्थना करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने करा क्या। Remember, he placed the stones, आपको याद है उसने पत्थर रखे he placed the wood, और उसने लकड़ी रखी he prepared the sacrifice, और उसने वो बलिदान तैयार किया, but no fire. और पर फिर भी कोई आग नहीं He आई। says, put water. उसने बोला उसमें पानी डालो, Not once, एक बार नहीं, not twice. दो बार नहीं, He says 3 times, put water. उसने कहा कि 3 बार उस पर पानी डालो। When God shows up, जब परमेश्वर आता है, he shows up in style. Can somebody shout an amen? ये वो हमेशा स्टाइल में आता है He shows up that there is no one like him. कि वो दिखाता है कि उसके जैसा कोई नहीं है। Like the ADC was Sunday morning singing, there is no one like God. जैसे एडीसी उस सुबह गा रहा था कि कोई परमेश्वर के जैसा नहीं है। Isn't that true? क्या ये सच नहीं There is no one like Jesus. कि यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है? Because he showed up क्योंकि वो आया, and he saved someone who was nowhere, उसने ऐसे व्यक्ति को बचाया जो कहीं भी नहीं who था, was nobody. जो कुछ भी नहीं था। How many can relate with और that? आप में से कितने इस बात को मानते हैं अपने When लिए everything failed, how many can relate when everything कि failed? जब सब कुछ असफल हो गया, Christ showed up. यीशु मसीह आया। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं? So imagine Elijah is asking 3 times pour out water. तो एलिया यहाँ पे 3 बार पानी डालने को कहता And है his prayer is amazing. और उसकी जो प्रार्थना है वो अद्भुत है। So only I just thought of giving you a story, but we can read verse 38. और मैंने सिर्फ आपको कहानी देने का सोचा, पर Sorry, हम before that he prays. The verse 38 is about the fire coming, but this is what he prayed. पर क्या कहते हैं 38 वचन आग आने के बारे में, पर ये प्रार्थना उसने की। O Lord God of Abraham, Isaac and Israel. ओ परमेश्वर यहोवा अब्राहम का, इजहाक का और याकूब का परमेश्वर। Have you noticed? He says God of Abraham, Isaac and Israel. उसने बोला कि अब्राहम का परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर। He doesn't say God of Jacob that this वो time. याकूब का परमेश्वर नहीं बोलता Because उस at समय। this time, Israel is far from worshipping the true living God. क्योंकि इस समय पे इजराइल दूर है सच्चे परमेश्वर की आराधना से। And it is one man interceding, like one man taking on behalf of the whole nation.
और एक ही व्यक्ति था जो मध्यस्थता में खड़ा था उस पूरे राज्य के लिए, He is representing the whole nation. और वो पूरे राज्य के लिए खड़ा हुआ था। And he says, "O God of Abraham, Isaac, Israel, और वो कहता है, ये अब्राहम, इसाक और इजराइल के let परमेश्वर, it be known to this day कि आज ये जाना जाए that you are God. कि तू परमेश्वर है, You're God in तू Israel, इजराइल में परमेश्वर and है, I am your servant. और मैं तेरा दास हूँ, And that I have done all these things at your word, और जो आपका वचन मुझे मिला वो सब मैंने किया, that you will turn their hearts back." कि आप उनके मनों को वापस फिराएं। God turns people's heart back. और परमेश्वर लोगों के हृदय को फिरा देता He है, doesn't delight in sending people to hell. और वो इसमें खुशी नहीं रखता कि लोग नरक जा You रहे know, हैं। someone said, "Oh, Christians, your God is sending people to hell. और कोई कहता है कि मसीही आपका परमेश्वर लोगों को नरक भेजता है, You should not do this, you should not be drunk, you should not be this." It's such a boring life. और तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, शराब नहीं पीनी, ये बहुत ही बोरिंग जीवन है। Then someone responded that, "No, my God stands at the door of hell so that no one should go because they do not belong there." और पर वो कहता है, मेरा परमेश्वर नरक के द्वार पे खड़ा है कि कोई वहां पर ना जा सके, Because we did not belong in hell. क्योंकि हम नरक के लिए नहीं बनाए गए थे। And when Elijah prayed, this is what happened. और जब एलिया ने प्रार्थना की तो Verse ऐसा हुआ, 38. The fire of the Lord fell from heaven and consumed the burnt sacrifice. और आकाश से आग उतर आई और पूरी वेदी को ढांप लिया। It consumed. उसने उसे ढांप लिया, It's taken. उसको ले लिया It's पूरा, burnt. और वो पूरा जल के राख हो गया, It burnt the wood as well. और उस लकड़ी भी जल गई, And the stones. और वो पत्थर भी। A physical element और एक ऐसा चीज like stone जो पत्थर would जैसी हो, not burn away from fire, वो आग से जल के राख नहीं but होगी, was consumed. पर वो पूरी धधकती हुई आग में ले ली गई। The God, the living God, answers by fire. और जो जीवित परमेश्वर है वो आग के द्वारा उत्तर देता And है। you know what people said? और आपको पता है लोगों ने क्या कहा? They saw God's glory. कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। They saw, "This is God." उन्होंने कहा यही परमेश्वर है, They said, "This is Lord. और यही परमेश्वर है, This is true God." और यही सच्चा परमेश्वर है। Because who can do things like that? कि कौन कर सकता है ऐसे कार्य? Not only stone was consumed, और ना ही सिर्फ पत्थर जल गया, but even water. बल्कि पानी भी नहीं रहा। There was so much of water, you can read it yourself. और इतना सारा पानी था, आप खुद पढ़ सकते हैं। What was God showing? क्या परमेश्वर दिखाना चाहता God है? was showing His glory. परमेश्वर अपनी महिमा दिखा रहा था। You see, wherever glory of God is seen, और आप देखिए जब भी परमेश्वर की महिमा देखी is जाती this है, extravagant miracle, extraordinary event. और ऐसा कुछ अद्भुत कार्य होता है, It's magnificent view और वो इतना अद्भुत होता है देखने में that all of them, they will say, "This is God, कि nobody else." और वो सब लोग कह सके यही परमेश्वर और कोई नहीं। When Isaiah sees the glory, और जब यशायाह ने वो महिमा देखी, he sees how unholy he is. उसने देखा कि वो कितना अपवित्र है। And when there is glory of God, और जब परमेश्वर की महिमा होती है, the angels shouting, "Holy, holy, holy are you, तो Lord." स्वर्गदूत पुकारते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर। So when Isaiah sees glory, तो जब यशायाह ने वो महिमा angels देखी, shouting, "Holy, holy are you, Lord." और जब उन्हें देखा कि फरिश्ते चिल्ला रहे हैं, पवित्र 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 And Isaiah परमेश्वर, says, "I am not holy." पर यशायाह ने कहा मैं पवित्र नहीं हूँ, Then there is fire. और फिर आग आई। Can you see where there is glory, where आप there is holiness, और आप देखेंगे जहाँ महिमा होती है, जहाँ पवित्रता होती है, and there is consuming fire, और वहाँ धधकती हुई आग होती है, burning us and making us what we ought to be. और हमें जलाती है और बनाती है जो हम बुलाए गए हैं बनने के Because लिए। only diamonds can stand fire. और सिर्फ जो हीरे हैं वो ही आग में बच सकते हैं, Only gold can stand fire. और सिर्फ सोना है जो आग में बच सकता Only है, silver stands और fire. सिर्फ चांदी है जो आग में बच सकती है। So they saw God's glory. तो उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा,
They said, "This is God." और उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर है। The next contrasting event in the New Testament. और जो दूसरा ऐसा ही एक किस्सा है नए नियम में, And this is the birth of the church. और ये है तब जब कलीसिया का जन्म हुआ। God calls his church glorious church. और वो परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक महिमामय कलीसिया बुलाता I है। don't know how you view church in 2024, but God views church as a glorious church. और मुझे नहीं पता आप 2024 में कलीसिया कैसे देखते हैं, पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को महिमामय बोलता है। I don't know how you view God in 2024, but God is same yesterday, today and और forever. मुझे नहीं पता आप 2024 में परमेश्वर को कैसे देखते हैं, पर परमेश्वर कल, आज और He's हमेशा the के लिए same एक सा God है। who calls fire and consumes everything. और वो वही परमेश्वर है जो आग को बुलाता है और हर चीज को And so- ढांप लेता है। In this group और इस समूह में chosen by Christ, जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, 12 apostles, 12 चेले, and some decided to follow Jesus. और उनमें से कुछ ने चुना कि वो यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, About 120. और उनमें से 120, There is whole bunch, but chosen few. और बहुत सारे लोग थे पर कुछ ही चुने गए। Bible says they were all in one place. उन्होंने कहा कि वो वचन ऐसा कहते हैं वो सब एक जगह पर थे They were in one accord. और वो एक मन थे। What do you think? आप क्या सोचते हैं? Contrasting with what Elijah did. और उस पे इसमें और उसमें क्या एक चीज है एक जैसी जो यशाह ने करी, It's an altar और वहां पे एक वेदी है being put together. जो साथ में लाई गई, Being put together by Christ. जो साथ में लाई गई यीशु मसीह के द्वारा। They didn't have choice, उनके पास चुनाव नहीं था, but Christ had called them. पर परमेश्वर ने उन्हें बुलाया They था। did have choice, हाँ, उनके पास चुनाव था, but they chose Christ. पर उन्हें यीशु मसीह को चुना। Stones are there. और वहां पे पत्थर हैं, They followed his word. और वो परमेश्वर उसकी बात के पीछे चले। When Ephesians 5, if you can put that scripture, if you can get to, no pressure, but you know this verse, Ephesians chapter 5, verse 26, Christ says, I will make my church glorious. और इफिसियों 25 में यीशु मसीह से कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को महिमा में बनाऊंगा, Washing by the water, और पानी के द्वारा धोकर making it cleanse, उसको शुद्ध करके, which is the word. जो कि परमेश्वर का वचन है। So these people who are gathered, 120, और ये जो 120 लोग जो समूह में थे एक साथ, first of all, they were the stones, वो पहली चीज वो पत्थर थे becoming an altar. और जो वेदी बना रहे थे। At the end, I want us to read 1 Peter chapter 3. We will come to that. और मैं सीधे पढ़ना चाहूंगा 1 But- पतरस उसका 3। They were the stones पर वो जीवित पत्थर थे brought together जिनको साथ में लाया गया for a glorious, magnificent, beautiful birth of a glorious church. और क्योंकि एक खूबसूरत एक अद्भुत जन्म हो सके एक कलीसिया का। People view church very differently. और लोग कलीसिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। Many will say, who look at church? और कई लोग कहेंगे कलीसिया की ओर देखो, Look at Jesus. यीशु मसीह की ओर There's देखो, no fault in him. उसमें कोई भी Oh, खराबी नहीं। church full of faults. और जो कलीसिया है उसमें इतनी But look at खराबी है। Jesus. He's so loving. और यीशु मसीह को देखो कितना प्रेमी है। But when this event was taking place, और जब ये किस्सा हो रहा था they were together, और वो साथ में थे stone were there, और वहाँ पत्थर थे they were praying, और वो प्रार्थना कर रहे थे wood is there, और वहाँ लकड़ी है the prayers are the wood. और जो हमारी प्रार्थना है वो लकड़ी है। Because sometime when we pray, it feels like it's not going anywhere. और जब कई बार हम प्रार्थना करते हैं हम सोचते हैं ये कहीं नहीं जा रही है It's just like hollow. और ये बस एक खोखली है। But do you know, wood lights up very fast. आपको पता है लकड़ी बहुत जल्दी जलती है। This is a positive view of the wood here. और यहाँ पे लकड़ी का एक सकारात्मक नजरिया है हमारा। So there was stones, there was wood. और वहाँ पे पत्थर थे, वहाँ पे लकड़ी थी। And remember Elijah saying, pour water. और एलिया कहता है कि पानी डालो उस पे।
3 times. 3 बार। Perhaps they were gathering 3 times in a day. और शायद वो 3 बार मिल रहे होंगे दिन में। 3 times in a day they were faithful in opening scripture. और वो 3 बार शायद दिन में विश्वास योग्य हो वचन खोलने के There लिए। was so much of water, maybe. और शायद इतना सारा पानी था They were getting cleansed. और वो शुद्ध किए जा रहे थे। In this group, और इस समूह में, the group of Jesus, जो यीशु मसीह का समूह there है, is Simon the Zealot. और वहाँ पे शिमोन है। You know Zealots? आपको पता है ज़ेलट कौन होते They हैं? were fighting for freedom. और वो विरोधी थे और वो आजादी के लिए लड़ They रहे थे। hated Romans. और वो रोमियो से नफरत करते They थे। wanted to make their religion as the powerful religion. और वो चाहते थे कि उनका धर्म एक सामर्थी धर्म हो। In the same group, और उसी समूह में, there is Matthew the tax collector. और वहाँ पे मत्ती था जो टैक्स कलेक्ट Tax करता था। collector Jews supported Romans. और जो क्या कहते हैं, जो टैक्स कलेक्टर So, होते थे how वो much- रोमियो लोगों के साथ थे। How much angry the zealots would be towards Matthew. अब आप सोचिए जो ज़ेलट लोग होंगे वो मत्ती को कितना नापसंद करते होंगे। But Christ said, hey, hang on a second. पर यीशु मसीह ने कहा 1 मिनट, I am gathering you मैं तुम्हें इकट्ठा कर रहा as an हूँ altar. एक वेदी बनने के लिए। What do you remember? आप क्या याद रखते हैं? ADC, what do you remember? एडीसी आपको क्या याद है? Do you remember the prophetic word that क्या we आपको have याद received? है जो भविष्यवाणी हमारे कलीसिया पर बोली गई That Christ is building us like an altar. कि यीशु मसीह हमें बना रहा है एक वेदी की तरह? Do you remember, church? क्या आपको याद है कलीसिया? For what? किस चीज के लिए? For a spectacular, magnificent, extraordinary event. कि एक खास, एक अद्भुत और एक असाधारण घटना घटे, For a revival. एक बेदारी के लिए, Where everyone will see and they say, Jesus is the Lord. कि जहाँ सब देखेंगे और बोलेंगे कि पर यीशु मसीह ही The प्रभु है। same revival that I'm talking about when these 120 were gathered. और मैं उसी बेदारी की बात कर रहा हूँ जो तब आई जब वो 120 लोग इकट्ठा थे। So stone is there, तो पत्थर है वहाँ पे, wood is there, लकड़ी है वहाँ पे, lot of water is there. और बहुत सारा पानी है। And what happened in Acts chapter 2? और फिर प्रेरितों के कार्य उसके 2 में क्या हुआ? You remember? क्या आपको याद है? That was the birth of this glorious church. तो इस महिमा में कलीसिया का जन्म हुआ। The fire came. और अग्नि आई। Did fire come क्या आग आई? to consume, जो उन लोगों को ढांप लेने के लिए, to take away the timidity and fear of people? और उनका भय और डर जो लोगों का था उस चीज को खत्म करने। The people, disciples who were so ready to give up, और वो सारे चेले जो हार मानने के लिए तैयार थे, who denied Jesus, जिन्हें यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, were ready to go back to their life. वो वापस अपने जीवन में जाने के लिए तैयार थे। The same people, after consuming experience, और उस अनुभव के बाद वही लोग will display the glory of God. वो दिखाएंगे महिमा उस परमेश्वर की। Isn't that wonderful? क्या ये एक अद्भुत बात नहीं? Isn't that took place? और आपको ऐसा कि ऐसा चीज हुई थी? And Christ is doing that with his people. और ऐसा ही यीशु मसीह कर रहा है अपने लोगों के साथ। Early church was birthed और जो पुरानी या नई कलीसिया थी, पहली कलीसिया थी, उसका जन्म हुआ gloriously. और बहुत ही महिमा में Christ तरीके says in Ephesians 5, I will make my church glorious. और इफिसियों 5 में यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को महिमा में Washing बनाऊंगा। of the water by the word. और वचन की जो उस जल के साथ में उन्हें धोऊंगा। So this is exciting church. तो ये बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है कलीसिया। Sunday we come हम संडे को आते हैं like a stones. पत्थर की तरह। Sometimes we really feel like stone. How do I drag myself to church? और कई बार हम सही में पत्थर जैसे महसूस करते हैं, कैसे अपने आप को घसीट के लाते हैं कलीसिया में। Is there wood? क्या वहाँ लकड़ी है? When we worship, we are praying. When we start the church, we are praying. जब हम शुरुआत करते हैं सर्विस की, तब हम प्रार्थना करते हैं, In between, आराधना करते we हैं, are praying for people. और फिर बीच में हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। I am praying. और मैं प्रार्थना करता I हूँ think you are praying. और मुझे ऐसा लगता है आप लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। Lots of wood. और बहुत सारा लकड़ी है। Will that fire catch up? क्या वो अग्नि आएगी?
then you know God shows up in style. फिर आपको पता है ये परमेश्वर हमेशा स्टाइल में आता We है. say, pour lot of water. हम कहते हैं ढेर सारा पानी डालो. Let's look at lot of scripture. आइए हम ढेर सारे वचन को देखें. Let's look at our हम अपने Bibles. वचन की ओर देखें. Hallelujah. हालेलुया. Will the fire come? क्या अग्नि आएगी? Will the church be glorious? क्या कलीसिया महिमा में बनेगी? It will be glorious. वो महिमा में होगी. Some people gave up on church. और कुछ लोगों ने कलीसिया से हार मान ली. You know, I have a high view for church. और मेरी जो नजरिया है वो बहुत ही ऊंचा है Not कलीसिया just के. because I became a pastor. इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक पासबान बन गया, I had this view even before. पर वो पहले भी मेरा ऐसा ही नजरिया था Christ died for his church. कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए How मरे. can he leave her just like that? कि कैसे अपनी कलीसिया को यूं ही छोड़ देगा, She is his bride. कि वो उसकी दुल्हन है. No husband leaves her bride just like that, और कोई भी पति अपनी दुल्हन को यूं ही नहीं छोड़ता, but provides for her, cherishes her, पर loves उसके लिए her. प्रदान करता है, उसका पाल पोषण करता है, उससे प्रेम करता है. If you mess up with his bride, you know whom you are messing up with. और अगर आप उसकी दुल्हन के साथ गलत करते हैं तो आपको पता है आप किसके साथ गलत कर रहे हैं. Christ loves his church so much, so he died for her. और यीशु मसीह अपनी कलीसिया से इतना प्रेम करता था कि उसने अपनी जान दे दी उसके लिए, He bled his blood. और उसने अपने लहू को बहाया, He purchased her. और उसने खरीद लिया, This perfect sacrifice. और वो एक सिद्ध बलिदान था. So remember on Sunday, तो आप याद रखें संडे को we have a lot of water, हमारे पास बहुत सारा पानी है, but one thing you didn't notice, पर आपने एक चीज नहीं देखी, there is also sacrifice. वहां पे बलिदान भी है, A perfect और एक sacrifice. सिद्ध बलिदान है. Whose sacrifice is किसका it? बलिदान है वो? Is the sacrifice prepared? क्या वो बलिदान तैयार है? Is it ready? क्या वो तैयार है? Cross is done. और वो क्रूस का कार्य हो चुका है. How many of you remember positional holiness? और आप में से कितनों को याद है कि स्थानीय पवित्रता How कैसी many हो? of you remember what we learned last Sunday? और आप में से कितनों को याद है हमने पिछले संडे क्या Now सीखा come था? on, every Sunday we will not give you chocolates. और हर संडे हम आपको चॉकलेट्स नहीं देंगे, But make notes. पर आप नोट्स बनाते हैं. Remember. आपको याद रहे, Apply. उस चीज को उपयोग करें. Lot of word, lot of water is about to be litten up and create a miracle that no one can do. और बहुत सारा पानी और ऐसा मिल के एक ऐसा चमत्कार करेगा जो कोई नहीं कर सकता. And then people say church is so boring. और फिर लोग कहते हैं कलीसिया बहुत ही बोरिंग है. Church of Jesus Christ is glorious. जो यीशु मसीह की कलीसिया है वो महिमा में है. I have a high view for Christ Church. और मेरा बहुत ही ऊंचा नजरिया है यीशु मसीह की कलीसिया के लिए. I saw my spiritual father and his wife would walk in together holding hands to church. और मैं अपने आत्मिक पिता और उनकी पत्नी को देखता था, वो साथ में हाथ पकड़ के कलीसिया में आते थे, And their kids coming together with as a family. और उनके बच्चे उनके साथ एक परिवार की तरह आते Said, थे. I want that model in my life. और मैंने कहा कि मुझे ऐसा ही उदाहरण चाहिए I अपने want जीवन to में, always walk in church with my wife and my children, कि मैं हमेशा कलीसिया में आऊं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, because for Christ, church is precious. क्योंकि यीशु मसीह के लिए कलीसिया बहुत ही कीमती है. You might have lost faith on church, और शायद आपने अपना विश्वास खो दिया हो कलीसिया से, but God's way is church. पर यीशु मसीह का मार्ग कलीसिया के ही द्वारा है. Through church, He is going to remember perfect our holiness. और कलीसिया के द्वारा ही वो हमारे विश्वास को सिद्ध बनाएगा. So, church, I want to tell you, ADC, church is not about happiness or receiving what we get. और कलीसिया सिर्फ खुशी के बारे में नहीं है और वो पाने के बारे में नहीं है जो आपको दिया जा रहा Church है, is about our holiness. बल्कि कलीसिया हमारी पवित्रता के बारे में. Just like marriage is not about happiness. जैसे कि एक विवाह खुशी के बारे में नहीं होता. Remember all of those who are single or were single, they think, oh, once I'm married, I will be very happy. और आप में से जो लोग अभी कुंवारे हैं, आप सोचेंगे अगर मैं शादी कर लूंगा मैं बहुत ही खुश रहूंगा. And all those who are married, they laugh. और जो लोग शादीशुदा है वो हंसते हैं. You really laughed. और आप लोग सही में हंस Then रहे you हैं, will realize what is happiness. क्योंकि आपको पता चलेगा खुशी होती क्या है. But you see, Jesus, God believes in marriage. He brings them together so that they become holy.
और यीशु मसीह है वो विवाह में विश्वास करता है, दो लोगों को लाता है कि वो पवित्र बन सके। In marriage, God is making two individuals, shaping them, bringing them two together, और एक विवाह में परमेश्वर दो लोगों को लाता है, उनको आकार देता है and making them more holy. और उन्हें और पवित्र बनाता है। In the same way, coming to church is not for our convenience और इसी तरीके से कलीसिया में आना सिर्फ हमारे आराम के or बारे में a नहीं है, matter of choice. सिर्फ हमारे चुनाव के बारे में नहीं है। Today let's go, or I am not feeling like to go, so let's not go. और आज मुझे महसूस नहीं हो रहा मैं जाऊं कलीसिया में, तो मैं नहीं जाता हूँ। This is my personal view. ये मेरा व्यक्तिगत If I नजरिया। would be sitting, not being a pastor, just like you, or I would be in a city, I am not a pastor, I am in this city, I want to go to church. और चाहे मैं आप लोगों की तरह क्यों ना कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं पासबंद ना हूँ या ऐसी शहर में हूँ जहाँ मैं पासबंद भी, मैं फिर भी कलीसिया में जाना No one चाहूँगा। has to tell me और कोई मुझे ये बताता नहीं है, because I read it myself. क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ And it is for my holiness. और ये मेरी पवित्रता के लिए है। That whatever the word comes shapes me. अब जो भी वचन आता है वो मुझे आकार दे In सके। our coming together, there हमारे- is something happening that you and I, we don't see. हमारे साथ आने में कुछ ऐसा होता है जो आप और मैं नहीं देख पाते हैं। Imagine those stones, they never knew that today they will be lifted up, consumed. और सोचिए उन पत्थरों के, उन्होंने नहीं सोचा था कि आज वो उठा लिए जाएंगे और आग से I पूरे ले लिए those जाएंगे। are dead stones, they don't think and they don't have soul. और हाँ, वो जीवित पत्थर नहीं है, वो ना सोच But सकते we हैं, are the living stones. पर हम जीवित चट्टाने हैं। And so in our coming together, there is an altar erecting or being raised. और हमारे साथ आने में एक वेदी है जो उठ रही है On that, there is sacrifice. और उसके ऊपर वो बलिदान है। And Christ is the perfect sacrifice. और यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान है, Not our sacrifice. ना कि हमारा I mean, बलिदान। what can we bring? और हम क्या ही ला सकते हैं? Our money? हमारे पैसे। Oh, church needs money, let's give. और कलीसिया को पैसे की जरूरत है, हम दे देते हैं। Oh, Christ needs money. ओ मसीह को पैसे की जरूरत है। Christ does not need anything to lit up the fire. और यीशु मसीह को किसी चीज की जरूरत नहीं है आग लगाने के लिए। In fact, pour out more water, out of that he can burn. और आप उसमें और पानी डालिए, भले उसमें से भी आग वो निकालेगा। But if though like those stones, पर उन पत्थरों के समान, some says, I don't want to go there because it's not a good experience. और कुछ कहेंगे कि मैं वहां नहीं जाना क्योंकि मेरा अनुभव अच्छा नहीं था, But they lost. पर वो हार गए। It is the stones that were not there as an altar lost. और वो पत्थर जो वहां थे नहीं एक वेदी की You तरह, see, वो church, असफल when we रहे। come together, we are on top of each other. और एक कलीसिया के नाते जब हम साथ में आते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर We होते हैं, join together. हम साथ में जुड़े होते हैं। By who? By Christ. किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। Now, this is an interesting one. I never knew it. I prepared like this. Later, I came to this verse. और ये बहुत ही दिलचस्प चीज है, ये मैंने तैयारी नहीं की थी, पर ये मैंने वचन मुझे मिला। You know, in Matthew, disciples did ask him, why does it say that Elijah must come first? और ऐसा क्यों कहता है कि एलिया सबसे पहले आएगा? I really didn't know this scripture. और मुझे ये वचन बिल्कुल नहीं पता था। So, you know what Jesus answered to them? तो आपको पता है You यीशु can- मसीह ने क्या जवाब दिया? You can note it down. This is extra. Matthew chapter 17, verse 10. और ये मत्ती 17 उसका 10 है, आप उसे लिख The सकते हैं। disciple asked him, why then do the teachers of the law said that Elijah must come first? और तो वो ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं व्यवस्था को सिखाने वाले कि एलिया पहले आता है? Jesus replied, to be sure, Elijah must come because he will restore all things. और वो कहता है, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। Remember, restore everything. आप याद रखें, हर चीज सुधारेगा। But this is what interesting, verse 12, it says, Elijah has already come. पर वो 12 में कहता है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है। Whom Jesus was talking about? और यीशु मसीह किसकी बात कर रहा था? That Jesus himself. वो यीशु मसीह खुद He की बात says, कर रहा the था। Son of Man. वो कहता है मनुष्य का पुत्र। Elijah prepared the sacrifice. और एलिया ने वो वेदी तैयार करी Jesus prepared himself as a sacrifice. और यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान की तरह तैयार किया। Isn't that amazing? क्या ये एक अद्भुत बात नहीं? How do we see church? और हम कलीसिया को कैसे देखते हैं? A place of where God meets with his people. एक ऐसी जगह जहाँ परमेश्वर अपने लोगों से Where आकर God मिलता है, displays his glory. जहाँ परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है। Where God and man meets is the place called temple. और वो ऐसा एक मंदिर जहाँ पे मनुष्य और परमेश्वर मिलते हैं। But it is not made of
stones that are dead, पर वो उन पत्थरों से नहीं बना जो कि मृत हैं, but it is made of living stone, you पर and वो I. जीवित पत्थर के द्वारा बना है जो आप और मैं When हैं, we come together, कि हम साथ में आते हैं. because you can make, and people made buildings of stones, far looking, great looking church, और हाँ, लोग इमारतें बनाते हैं बड़े बड़ी सुंदर कलीसियाओं के लिए, right? हाँ, But there was no living stone. पर वहाँ पे जीवित पत्थर नहीं होते. There was no wood, there was no water. वहाँ ना लकड़ी होती है, ना पानी होता है. So the church went through so many seasons and eras. और कलीसिया बहुत अलग अलग दौर से गुजरी. So much so, people began to lift their faith away from church. और ऐसा समय भी आया कि लोगों का कलीसिया से विश्वास हट गया. Imagine on the day of Pentecost saying, "Who are these? Look at them." और पेंतिकुस्त के दिन लोग सोचेंगे ये कौन लोग हैं. Hang on a second. A zealot hanging out together with a tax collector? एक zealot, एक क्या कहते हैं वो टैक्स लेने वाले के साथ घूम Oh, रहा I है. see that Mary was caught in adultery. और वो मरियम जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, She is also there with them. और वो भी उनके साथ है वहाँ. Forgiven people, और वो क्षमा किए हुए लोग हैं restored people, और पुनर्स्थापित किए हुए put लोग together साथ मिलाए गए for a glorious, magnificent event. और एक महिमा में खूबसूरत और अद्भुत घटना के लिए. When till the 2024, और 2024 तक people give up on church. लोगों ने कलीसिया पे विश्वास छोड़ दिया था Nothing good comes out of church. कि कलीसिया से कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा है. Perhaps you gave up, और शायद आपने हार मान ली हो, maybe because of you had a bad experience of leadership. क्योंकि शायद आपको एक बुरा अनुभव हुआ हो अगुवाओं का, Maybe you saw things that were not so godlike. और आपने शायद ऐसी चीजें देखी हो जो परमेश्वर की जैसी ना हो, Maybe you saw the stones that were so rough. और आपने शायद वो पत्थर देखे हो बहुत ही खुरदुरे हो. If you want to note down, in the first altar, God said, choose a smooth stone out of the river. और अगर आपको याद हो तो लिखा है कि पहली जो वेदी बनी उसमें कहा कि बिल्कुल कोमल अच्छे पत्थर In चुनना. river, you get a smooth stone. और आपको जो एक नदी होती है उसमें हमेशा आपको एक कोमल पत्थर मिलता है जो All ऊपर से, shaped by the water. और वो पानी के द्वारा उसका आकार दिया गया होता है. We can give up on church और शायद हम कलीसिया पे हार मान सकते हैं because of that bad experience, either with individual. और शायद उस बुरे अनुभव की वजह से किसी व्यक्ति के साथ. Remember, our coming together is not any self agenda. और हमारा एक साथ आना हमारे खुद के मतलब के लिए नहीं है, It's about receiving God's agenda. कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पा That सकें is to manifest His glory. कि वो अपने उस महिमा को प्रकाशित कर सकें, That is to host the fire that He wants to pour कि हम out. तैयारी कर सके उस अग्नि के लिए जो वो भेजने पर है. Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं कलीसिया? That's the ultimate agenda. और वही हमारा उद्देश्य है. Do not wear your heart on the shoulder. अपने हृदय को अपने कंधे पे रख के You ना know, some घूमें. people get hurt with small things. और कुछ लोग छोटी छोटी बातों से चोट खा जाते Oh, हैं I was not welcomed in the church. कि मेरा स्वागत नहीं किया गया कलीसिया Oh, में, nobody came and spoke to me. और कोई मेरे पास आके किसी ने मुझसे बात नहीं की. You know, the enemy is very good. आपको पता है शत्रु बहुत ही अच्छा है इन He is सब बातों में, conniving. और वो बहुत चालाक है. He doesn't want us to be together. वो नहीं चाहता कि हम लोग साथ में हों, Because if stones comes together and sacrifice is already prepared, the fire will come. कि अगर पत्थर साथ में आते हैं और बलिदान पहले से तैयार है तो अग्नि आएगी. When the fire comes, even ungodly things get consumed. और जब वो अग्नि आती है तो अपवित्र चीजें भी राख कर दी जाती हैं, Can made right with God. क्या हम परमेश्वर के साथ सही जगह पर आते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Same person, Isaiah. और Once the वही fire व्यक्ति comes, याशाया, he said, "My mouth is so filthy. Only bad thing comes out. God, how can I even stand before you?" उसने बोला मेरा जो जीभ है वो इतनी अपवित्र, कैसे अच्छी चीजें इसमें से आ सकती हैं. The fire sanctifies him. और वो अग्नि से उसका And the जुबान शुद्ध की same जाती है. man is an amazing prophet. और वही व्यक्ति एक बहुत ही अद्भुत भविष्यवक्ता बनता He है, gave most accurate prophecies of Jesus. और उसने बहुत ही सिद्ध भविष्यवाणी की यीशु मसीह के बारे में.
what God is doing with us as church or church in general, the body of Christ. और आप में आपके साथ जो कलीसिया के साथ ये परमेश्वर कर रहा है, आपके साथ जो परमेश्वर It कर is रहा है, huge, it is big, it is magnificent. और वो बड़ा है, वो अद्भुत है और इतना खूबसूरत है You and I cannot comprehend. कि आप और मैं उसे व्यक्त भी नहीं कर He is सकते। busy restoring lives. और वो बहुत ही व्यस्त है जीवनों को पुनर्स्थापित करने He is में, busy saving souls. और वो बहुत ही व्यस्त है प्राण को बचाने में लोगों के, He is busy showing people that He is the Lord. और वो व्यस्त है लोगों को दिखाने में कि वो परमेश्वर है He is true God. और वो सच्चा परमेश्वर है। I also encountered God. और मैंने भी ऐसे ही परमेश्वर का सामना किया, I didn't know Him. और मैं उसे नहीं जानता था। Like all of us, we come to God और ऐसे ही हम सब परमेश्वर के पास आते हैं hoping to get something. कि हम आशा रखते हैं कि हमें कुछ Maybe मिलेगा, answer for healing. शायद हमारा जवाब उस चंगाई के Maybe लिए, answer for financial और शायद breakthrough. हमारी आर्थिक स्थितियों के लिए जवाब And मिलेगा। God doesn't send everyone away. और परमेश्वर सबको खाली हाथ नहीं भेज देता। When we come, we do receive what we came for. और हाँ, जब हम आते हैं हम वो प्राप्त करते हैं जो मसीह जिसके लिए हम आए थे। And some of us, we want to go back once we got our stuff. और कुछ में से हम वापस जाना चाहते हैं जब हमें अपना वो I mean, जवाब मिल जाता Some है। of them, they do that relationship like that. और कुछ लोग ऐसे ही रिश्ते करते हैं Just get and then go, tata, bye bye. कि मिल गया और अब बाय बाय। But God says, hey, hang on a second. I want to give you eternal life. पर ये परमेश्वर कहता है रुको एक मिनट, मैं तुम्हें अनंत का जीवन देना You चाहता हूँ। came to receive, और तुम लेने आए थे, take this life. तुम ये जीवन लो, But you have to give yourself. पर तुम्हें अपने आप को देना पड़ेगा। Only few come to that. वो कुछ ही लोग उस जगह पर आ पाते हैं। I said, I want to give my life to you, Lord. और मैंने कहा परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ। And I had no clue what I'm getting into. और मुझे नहीं पता मैं किस चीज में But कदम रख रहा I हूँ, can guarantee you it was all good. पर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ वो सब कुछ बहुत He अद्भुत था। got rid of some of bad habits of मैं अपनी पूरी आदतों से मेरा पीछा छूटा, Like I said, I was fearful talking to public. It's a big thing for me. और मैं बहुत ही डरता था। लोगों के बीच में खड़े होकर बात करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल I था, would shiver. Speaking English, I failed interviews. I was struggling. और मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। मैंने इंटरव्यूज फेल करे हैं, But God said, I have a plan for you. पर परमेश्वर ने कहा मेरी एक योजना है तुम्हारे लिए, It was more than what I went to take. और ये उससे कई बढ़कर था जो मैं लेने गया था। This is what Christ does. और यही चीज मसीह करता है। Then I went to church. जब मैं कलीसिया में गया, Praise God for church. How many और मैं would you स्तुति say, देना चाहते हैं परमेश्वर praise को God कलीसिया for के लिए। church? आप में से कितना कहेंगे परमेश्वर को स्तुति Come मिले on, you may have कलीसिया के लिए? not, I'm not saying praise God for ADC. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ एडीसी के लिए परमेश्वर को महिमा दे। Remember the first church you went. आप उस पहले कलीसिया को याद करें जहाँ आप गए थे, Maybe some of you don't want to remember because you had a bad और experience. शायद आप में से कुछ याद ना करना चाहते हो क्योंकि आपका अनुभव अच्छा ना But रहा do हो। you know God still shaped you there? पर आपको पता है परमेश्वर ने फिर भी आपको वहाँ आकार दिया, God still molded you there. परमेश्वर ने आपको फिर भी वहाँ बनाया। So it's not about leadership. और यहाँ पे अगुवाई के बारे में It's नहीं, not about others. और ये दूसरों के बारे में It's नहीं, about God placing us in a family called church. कि परमेश्वर हमें एक परिवार में रखता है जो कि कलीसिया है। How many of you have a family always talks rosy? Hi, good morning. How are you doing this morning? और आप में से कितनों का परिवार है जो प्यार से बात करता है, हाय गुड मॉर्निंग, तुम Or कैसे you हो? get a kick and say, hey, get up. या आपको एक लात पड़ती है कि सुबह उठो। You see, families are real. आपको पता है जो परिवार है वो सच में है, We get to be real here. और हम यहाँ पे अपना रियल सेल्फ बन Not सकते I हैं, am holy than you. और ना कि मैं आपसे ज्यादा Oh, पवित्र look how हूँ horrible you are. कि देखो तुम कितने बुरे हो। We speak well for each other. हम एक दूसरे के लिए बेहतर बोलते हैं, You know, family comes together stronger in tough times. और जो परिवार है वो साथ आता है मुश्किल समय में। Yes, you may hear like how every family has either kicking of the leg. और हाँ, आप लोग सुनते होंगे कुछ ना कुछ परिवारों में ऐसे But लात मार Christ देते is हैं। bringing this spiritual family called church. पर यीशु मसीह अपनी इस आत्मिक परिवार को ला रहा है No जो कि believer, कलीसिया कहलाती है। कोई विश्वासी no believer is meant to be lonely.
और कोई भी विश्वासी अकेला रहने के लिए नहीं है, Because alone they are not called an altar. और वो अकेले एक वेदी नहीं It's कहलाते। only when they come together. वो तभी होता है जब वो साथ में बुलाए जाते And हैं। Christ would always do something when you are placed in the church. और मसीह जरूर आप में कुछ करेगा जब आप कलीसिया में Now रखे जाते हैं। God's way to restore this world is church. और इस दुनिया को पुनर्स्थापित करने का तरीका कलीसिया के द्वारा ही है। Can somebody shout an amen? क्या कोई आमीन बोल सकता है? Isn't that क्या didn't you get shaped when you started coming to church? क्या आपको आकार नहीं मिला जब आप कलीसिया में You know, आना शुरू people किया? also forget how they came before. और कुछ लोग भूल जाते हैं कि वो पहले कैसे आए थे। Now they changed. They are all sorted. Now they, instead of being grateful, they become like, oh, I'm not getting anything in this church now. और जब उनका जीवन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, सही जगह पे आ जाते हैं, कहते हैं अब मुझे इस कलीसिया से कुछ नहीं मिल रहा है। Because they were at this level, now they gone to ceiling. Now this ceiling is hurting them. और वो पहले नीचे थे, अब वो बिल्कुल Because- ऊपर तक पहुंच चुके हैं। अब वो जो छत है उन्हें चोट पहुंचा रही है। Christ wants to bring us together. परमेश्वर यीशु मसीह हमें साथ There लाना is चाहता है, power in coming together. और एक सामर्थ है एक साथ आने में। And one point that I really wanted to get to, don't worry, today we will not get over. In one message, what would you touch about Glorious Church? और आप एक मैसेज में आपको कितना ही बताया जा सकता है महिमा में That's कलीसिया why. के बारे में। You are happy, you are excited that you are hearing this truth. और आपको उत्साहित होना चाहिए कि आप ये सत्य सुन रहे हैं। Next Sunday, you hear finances God's way. और अगले संडे आप सुनेंगे आर्थिक तरीके से कैसे परमेश्वर के मार्ग पे चले। That is by Binzi Bhaiya. और वो बिंजी भैया के द्वारा होगा, He's touching on finance. और वो आर्थिक स्थिति पर बात करेंगे। Following that Sunday, again we would come back to church God's way. और उसके आने वाले संडे हम वापस आएंगे कलीसिया परमेश्वर के Because there's so अनुसार। much to learn how God views the church. और हमें बहुत सीखने की जरूरत है परमेश्वर कलीसिया को कैसे देखता है, Than what we view, how we view it. और जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं। So a girl like Prerna comes to the church. और एक व्यक्ति प्रेरणा की तरह कलीसिया में आता है, Maybe rough stone, और एक बहुत ही खुरदुरा सा पत्थर की तरह, but gets shaped. पर उसको आकार मिलता है। But with her joining together with others, और जब वो दूसरों के साथ मिलती है Sunday after Sunday, हर संडे, together as a family, एक परिवार के नाते coming together, साथ में आकर we become a place of God. हम एक परमेश्वर की स्थान बनाते हैं, She has a place in there. और उसकी एक जगह है उस जगह में। An altar like this, you have a place. और इस वेदी में आपकी भी एक जगह You है, know, no one can take your place. और आपको पता है आपकी जगह कोई नहीं You ले are सकता, that unique stone. और आप वो ऐसे अलग पत्थर हैं। And God wants you in coming together. और आप चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो साथ में आए। I didn't even know what I was doing in certain church. और मुझे नहीं पता मैं और कलीसियाओं में क्या कर रहा I हूँ। went through many churches. मैं बहुत कलीसियाओं से गया, I changed many church. मैंने बहुत कलीसियाएं बदली, But very early I learned Jesus believes in her church, his और पर मैंने church. बहुत पहले ही सीख लिया कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया पर विश्वास रखता है। I joined happily in church. और मैं खुशी खुशी कलीसिया में आया, And you know, I left happily as और मैं well. खुशी खुशी वहां से गया भी। Any church, if I go back, they will happily have me. और मैं किसी भी कलीसिया में वापस चला जाऊँ, वो मुझे खुशी खुशी I वापस ले never लेंगे। close doors in such a way that they will say, oh, great that he left. और ना ही मैंने ऐसे द्वार बंद करे हुए कि अच्छा हुआ ये चला गया। We join church happily, we leave church happily. हम खुशी खुशी कलीसिया से जुड़ते हैं, हम खुशी खुशी कलीसिया से जाते हैं। This is what I wanted to give. The first point was unity in coming together. और ये पहली चीज जो मैं आपको देना चाहता था वो है एकता, जो है साथ Because आने में। Ephesians 4 says, make every effort to maintain the unity. और ऐसा कहता है इफिसियों में, हर एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हारा एकता बनी रहे। Now, those dead stones, they always stay together. और वो जो मृत पत्थर है वो But हमेशा साथ में The रहते हैं, problem is with the living stones. पर जो परेशानी है वो जीवित पत्थरों के They साथ है। always want to break and go free. वो हमेशा तोड़कर अलग होना चाहते I हैं। don't want to become altar. I want to become something. मैं वेदी नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ।
Living stone has a problem. और जो जीवित पत्थर है उनकी कुछ ना कुछ तो परेशानी है They keep going away. कि वो बार बार भटक जाते हैं, दूर चले The जाते हैं। enemy has done a great job in dividing Christians. और शत्रु ने बहुत अच्छा कार्य किया है मसीहों को बांटने में, So much of division. इतना सारा बंटवारा। But it doesn't mean there is no unity. इसका मतलब ये नहीं है कि एकता नहीं है। We are all united because of Christ. हम सब एक करे गए हैं मसीह के द्वारा। Sadly, denominations, और बहुत दुख की बात है कि डिनोमिनेशंस आए and now there is so much of division that we forget who are those divisions also. और इतने सारा बंटवारा हो गया कि हम भूल जाते हैं कौन कौन से समूह हैं। But yes, we are still united. Jesus Christ is still there. Don't forget him. पर आप याद रखें हम फिर भी एक हैं, यीशु मसीह अब भी वहां पर है। But we forget that it is about maintaining unity. पर हम भूल जाते हैं कि यह एकता बनाए It रखने के never बारे में। said that build unity or bring unity. वो ऐसा नहीं कहते कि बनाओ या लेकर आओ एकता, वो नहीं बोलता। Unity is there. एकता वहां पर है। It says maintain unity वो of कहता the है- spirit. वो कहते हैं कि आत्मा में एकता बनाए रखो। To maintain unity, और एकता बनाए रखने के this लिए, is I'm quoting Ephesians 4. और यह है एफिसियों 4 में, It says be humble. वो कहता है कि दीन रहो। Are there humble people here? और क्या यहाँ पर दीन लोग हैं, Or pride people who are always thinking about themselves? या वो घमंडी लोग जो हमेशा अपने बारे में सोच रहे होते हैं Self-centered, self-focused. और वो आत्म केंद्रित होते हैं और स्वार्थी होते हैं। A self-centered, self-focused will never go say hi to someone. और जब वो आत्म केंद्रित होता है वो जाके किसी को हाय नहीं बोलेंगे। Or are you being preoccupied what others are thinking about me? या आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं? No one is thinking about you. कोई आपके बारे में नहीं सोच Because रहा by nature, all of us are self-centered. है। क्योंकि स्वभाव से हम सब आत्म We are all केंद्रित हैं। thinking about ourselves. हम सब अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं। How many would say amen to that? आप में से कितनों ने आमीन बोला इस बात Yes, पे? that's the truth. और हाँ, ये सत्य है। And so there is no self-agenda. और इसलिए वहाँ पे अपना कोई मकसद नहीं है। In ADC, we work hard और हम एडीसी में हम मेहनत करते हैं to maintain unity. कि हम एकता बनाए रखें, Because it's so easy to be lost. क्योंकि बहुत आसान है खो जाना। So easy as such that you begin to think yourself you lost unity. और आप इतना ज्यादा कि आप खुद सोचने लगते हैं कि आप में एकता खो दी है। आप खुद के बारे में सोचने लगते हो, तुरंत ही एकता खो गई बाबा. अब जैसे ही आप खुद के when you start thinking of yourselves, you It's lose unity. So easy. We think of ourselves every minute, I think. और मुझे लगता है हम हर मिनट अपने बारे में ही सोचते हैं। In ADC, we want to maintain the unity. और एडीसी में हम चाहते हैं कि वो एकता बनी रहे। This is God's way. और ये परमेश्वर का मार्ग Because है। where there is unity, God commands every blessing. और जहाँ एकता होती है परमेश्वर सारी आशीषें वहाँ देता है। Christ is brought together. और मसीह साथ में लेकर आता He है has placed His word. और उसने अपनी लकड़ी वहाँ पर लगाई He has placed Himself as a perfect और sacrifice. उसने अपने आप को वहाँ एक सिद्ध बलिदान की तरह रखा। And the fire of God will come. और फिर परमेश्वर की आग आती है। I can't finish this message. और मैं ये संदेश पूरा खत्म नहीं कर But we सकता, will continue. पर हम इसको जारी रखेंगे। I just want to close with this scripture. We will keep on referring in eventually as well. और मैं इस वचन के साथ अंत करना चाहूंगा जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे। Now, when I said about unity, obviously Ephesians 2:14, it says His purpose was to create the church to make a new humanity, a one new man, one person. और कहता है क्योंकि वो हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दी गई। But what I want to close with is 1 Peter 3 verse 1 to 5. और मैं अंत करना चाहता हूँ 1 पतरस 3 उसका 1 से It 5। starts with saying, put away all malice and all deceit, hypocrisy. Put away. Don't show that you are so holy and back you are something else. Put away your hypocrisy. और वो कहता है कि अपनी सारी द्वेष और अपना सारा जलन एक दूर करो And envy and slander. और हर तरीके की गलत बात, But like newborn infants. पर एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान। Newborn infants are so beautiful. और जो नए जन्मे जो शिशु होते हैं वो इतने So खूबसूरत cute. होते हैं, वो कितने सुंदर होते हैं And they are very innocent. और वो बहुत ही मासूम होते हैं। They are very innocent.
और वो बहुत ही मासूम होते Scripture हैं saying, come like a newborn infants, और वो कहते हैं एक नए जन्मे शिशु के long समान आओ for a pure spiritual milk, और वो शुद्ध जो दूध है उसकी लालसा रखो that you might grow up into salvation. कि तुम उस उद्धार में बढ़ते चले जाओ If you indeed have tasted the Lord is good. अगर तुमने सही में चखा है तो परमेश्वर भला है And the verse 4, as you come to him as a living stone, और फिर तुम उसके पास आओ एक जीवित पत्थर के समान rejected by men, जो मनुष्य के द्वारा तो ठुकराया गया but in the sight of God, chosen and precious. पर परमेश्वर की नजर में चुना हुआ और कीमती Can है you tell someone next to you, you are precious? क्या आप किसी अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं कि आप कीमती हो You are precious in this altar. आप इस वेदी में बहुत कीमती हो Say, you are precious in this altar. कि आप बोलिए कि आप कीमती हो इस वेदी में Prerna, you are precious. I know you'll be going. You and I were rejected by men but chosen by God. आप और मैं मनुष्य के द्वारा ठुकराए गए थे पर परमेश्वर के द्वारा चुने गए You yourself, like living stone, are being built up as a spiritual house. और एक जीवित पत्थर के तरह आप एक घर के समान बनाए जा रहे हो We can say altar. या हम कह सकते हैं वेदी Can everyone read it and say, to be a holy priesthood? कि हम एक पवित्र महायाजक के समान बने Remember, we are being made holy in behavior holiness. और हम पवित्र किए जा रहे हैं अपने स्वभाव में To offer a spiritual sacrifice कि हम एक आत्मिक बलिदान दे सकें acceptable to God जो परमेश्वर के द्वारा स्वीकारा जा through सके Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा Are you blessed with the word this morning? क्या आप इस वचन से आशीषित हुए Are इस you सुबह? encouraged? क्या आप उत्साहित हुए We are being made together something big that we can't understand. और हम साथ में मिलकर कुछ ऐसा बड़ा बनाया जा रहा है हमारे द्वारा जो हम सोच भी नहीं Church सकते is God's way in restoring the lost world. और परमेश्वर का अनुसार कलीसिया ही है जो जगत को Church बचाएगी is for our holiness. और जो कलीसिया है वो हमारी पवित्रता के In लिए है church, we are being shaped by God. और हम कलीसिया में ही आकार दिए जाते हैं परमेश्वर के You and द्वारा I are not need to be told, not need to be convinced when we give ourselves for togetherness to come together. और आपको बताया नहीं जाना चाहिए या आपको मनाया नहीं जाना चाहिए कि आपको एकता के लिए बुलाया गया You है know, one thing, forgive me, but one thing in our church, if you don't show up 2 weeks, 3 weeks, you don't still receive a message from me saying, why you are not coming to church? और मुझे माफ करिएगा पर अगर आप 2-3 हफ्ते नहीं आते कलीसिया में तो आपको मुझसे मैसेज Because मिलेगा कि आप क्यों नहीं आ रहे That कलीसिया में? culture will only make you come for me. और अगर वो उस चीज से फिर आप सिर्फ मेरे लिए आएंगे But you are coming to church for Christ. पर आप कलीसिया में मसीह के लिए आ रहे हैं Christ expects us to be in church और परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है कि हम कलीसिया for में हों our holiness हमारी पवित्रता के लिए and for His display of glory. कि हम उसकी उस महिमा को प्रकाशित होता हुआ देख सकें Amen. आमीन Bible says when they see you, they may glorify my Father in heaven. और वचन ऐसे कहते हैं कि जब वो आपको देखे तो आपका जो पिता स्वर्ग में है उसको महिमा दे सकें Prerna, this is not finished yet और because when people see you, where you go in Chandigarh, people should glorify God. And that's for every one of us. और ये हम सब के लिए है कि हम जहाँ भी जाए परमेश्वर Can we लोग हमें देख stand के महिमा and दे just परमेश्वर को respond what we've heard this morning? और क्या हम खड़े होके प्रति उत्तर दे सकते हैं जो हमने सुना है उस First of चीज all, का thank God that He chose us. और पहली चीज धन्यवाद दे कि परमेश्वर आपने हमको चुना Why don't you thank God? और क्यों ना आप परमेश्वर को धन्यवाद दें Lift up your voice. अपनी आवाजों को उठाएं This is not a silence place. और ये कोई शांति की जगह नहीं है Let the noise of the stones come out. कि पत्थरों से आवाजें आने वाली हो सकें Let the words arise right now. और आप वचन आपके उठने वाले Say, हो Lord, सके thank you. कह परमेश्वर आपका धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु